A most welcome to all defense aspirant. So in today's video we are going to see the answer of the questions asked in a CDS exam in GS paper. So in this video we are also going to see how to approach the question. If you don't know answer, how to use the elimination method also. So in this video we are going to see all of these things. So let's, without wasting any time, let's come to the topic. Let's come to the question. So the first question is, if the magnification produced by lens. So this is the simplest question. uh, Most of you, I hope most of you attempted right. So the answer for it is option number C is the correct answer. So next, come to the next question. In this question they are asking about the resistivity of the silver, nichrome and glass. We know the resistivity, the uh, property of that element, how to resist the current, flow of current. So less resistivity is of silver, so the answer for is silver. If you know that resistivity of the silver is the least, so for that you have see the least one is silver. So without wasting, without going to another option, you can just mark option A correctly. So next question is, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आल्सो अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में पूछा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क दैट नॉट हिज हेयर. सो पहले आप मार्क करते, इसमें नॉट को सर्कल करना था. कई बच्चों ने गलत किया है, नॉट नहीं देखा और मार दिया है आंसर. सो होता क्या है, गलत हो जाता है. तो सबसे पहले नॉट को कर, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले नॉट को सर्कल करना चाहिए या अंडरलाइन कर देना चाहिए. फिर ऑप्शन नंबर ए को अगर आप रीड करते तो इट इज़ अ राइट ऑप्शन. सो option number, where is the question, option number is the right option, and second is also simple statement, is also right, and third one we all are have read it, that it is also the right question. So option number D is left, so the answer for it option number D. Now let's come to the next question. This is also many of you not able to mark it right, because not able to solve this question. It is a simplest form. Displacement पूछा था, तो displacement shortest distance होता है. So if you know, if you see that diameter 100 था इसका, diameter 200 था, तो क्या हो रहा था, 30 सेकंड में एक राउंड कर रहा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था हर 30 सेकंड में. सो इस हिसाब से आप थोड़ा सा डिवाइड करते तो 30 सेकंड के बाद जो बच रहा था वो था 15 सेकंड. तो 15 सेकंड में डिवाइड करते जाते, मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, तो रिमाइंडर बचता 15. 15 मतलब आधा सर्कल, आधा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो आधा सर्कल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई, डायमीटर. सो द आंसर फॉर इट डायमीटर. This is how you can approach this question. So now let's come to next question. So what happened to gravitational? It is also simplest. It is a repeat question. So many exam, it also a previous CDS exam, it also this question also asked. So this is the repeated one. So the answer for it, answer number C. So don't go by the answer taken, that mark in the screen. So I have right answer I have marked with a red pen. So moles पूछा था ऑक्सीजन के, 1 मोल ग्लूकोज में. सो मोल्स हो रहे थे, 6 मोल्स हो रहे थे. सो राइट आंसर फॉर इट इज 6C1. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ रही कि कौन सी नहीं है. सो सिंपलेस्ट फॉर्म वी नो दैट ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होना. तो टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस, ये तो सही था, क्योंकि जब भी हम रखते हैं किसी चीज़ को अपने इन्वायरमेंट में, सबसे पहले वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से. तो जब भी टेस्ट किसी भी चीज़ का स्पॉयल हो रहा है, कोई भी खाना खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है खाने के साथ, वो सब ऑक्सीजन कराता है. तो ये तो नहीं था. बटर का टेस्ट चेंज हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. Then brown, red is brown, it is also we know that as rusting is caused due to the moisture and oxygen. So wine gets sour with time. Wine भी it is type of oxidation also. So the ये भी करेक्ट ऑप्शन था. आपको नॉट ढूंढना था, तो नॉट बचता है वाइट सब्सटेंस. इफ यू डोंट नो द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अबाउट दिस, इफ यू रीड द स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन नंबर बी, इसमें बेरियम क्लोराइड बोला है और सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट. सो इन दोनों में ना ही किसी दोनों में ऑक्सीजन थी. इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, एक्सचेंज में भी ऑक्सीजन नहीं है. तो ये कैसे हो गया ऑक्सीडेशन? ये तो ऑक्सीडेशन है ही नहीं. ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन का एडिशन होता है. तो इन दोनों सब्सटेंस में ऑक्सीजन था ही नहीं, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट. नाउ लेट्स कम विद, इट इज आल्सो वेरी सिंपल question they are asked in this exam. Ant sting is the correct option.
सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट chronological order में. Most of you find it difficult. So how I approach for this question that if you know that चंपारण is 1917 में हुआ था. चंपारण, लेट मी राइट, 1917 में चंपारण हुआ था. जलियांवाला, मोस्ट ऑफ यू नो दैट जलियांवाला अप्रैल 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में, बैसाखी के दिन. ठीक है ना. 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था. 17 में आपको ये दोनों भी पता था. अहमदाबाद वाला भी बहुत सिंपल था 1918 में. सो बस्ता कौन, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा, ये किसी को नहीं पता था. आप, हम ये किसी को नहीं पता, फिर भी हम आसान अटेम्प्ट कर सकते थे. तो वो चंपारण 2 पहले आ जाता, 1 उसके बाद आ जाता, 3 ये आ जाता. तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट है. नाउ लेट्स कम टू, इट इज आल्सो वेरी सिंपल दैट इंडियन हिस्ट्री में 1916 में क्या हुआ था. इंडियन लखनऊ सेशन हुआ था, जिसमें क्या बोला गया था, कांग्रेस फिर से जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेटर थे दोनों साथ में आ गए. प्लस प्लस लीग, जो मुस्लिम लीग थी, जिन्ना आ चुके थे इस टाइम पे. जिन्ना ने ही उनका केस लड़ा था. किनका, बाल गंगाधर तिलक, या इट इज बाल, ही इज बाल गंगाधर तिलक का उन्होंने ही केस लड़ा था. तो बाल गंगाधर तिलक जेल से छूट के आ चुके थे. उनका जिन्ना जिन्ना ने उनका केस लड़ा हुआ था कोर्ट में, और जिन्ना ही रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम लीग को. तो जिन्ना ने और बाल गंगाधर मिलकर कांग्रेस और लीग का वो करा दी क्या कहते हैं उसे, मीटिंग, मीटिंग नहीं यार, एक साथ आ गए. सो और साथ ही साथ लखनऊ होम रूल लीग भी फॉर्म हो चुकी थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के दोनों के द्वारा. सो राइट ऑप्शन इज डी. नाउ लेट्स कम टू द next question. It is also most of you not able to write correct it. It is like, if you know the place where it is in the map, if you have image, good imagination power, so you can also able to attempt this question. So साउथ ईस्टर्न के लिए हो जाता आपका, ईस्टर्न पार्ट में कोलकाता था. ये अगर आपको याद होता तो आप एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. एंड वेस्टर्न का याद होता कि वेस्टर्न होता है हुबली, इज देयर वेस्टर्न. सो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते आप. सो ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर था ए करेक्ट था. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये भी कई लोगों को डिफिकल्ट फील हुआ है. इंडिविजुअल लावा फ्लो नॉर्मली, अब ये क्या होता है, लावा के ऊपर लावा होता है. पहले लावा निकला, ठीक है, ठंडा हुआ, उसके ऊपर डेब्रीज आए, तो एक लेयर डेब्रीज की बनी, एक लेयर लावा की बनी. फिर लावा फ्लो हुआ, फिर डेब्रीज के ऊपर लावा आया, फिर लावा फ्लो हुआ, फिर उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी इट्टी वगैरह कुछ आई, फिर ये हो जाता है कंपोजिट वोल्केनो. ये फीचर होता है कंपोजिट वोल्केनो के, नॉट स्ट्रेटो वोल्केनो. सो द आंसर फॉर इट ऑप्शन नंबर बी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइसोहेलन, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. इफ यू नो then you are able, not able, you don't know, you can't apply some logic also in that question. So the answer for it, salinity. Isotherm, if you know the isotherm is for temperature. So अगर isotherm होता तो temperature हो जाता. और प्रेशर का भी कुछ है, आई एम नॉट रिकॉल इट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट. सो सैलिनिटी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ब्रिक्स का पूछा हुआ था उन्होंने. ब्रिक्स ग्रुप किसका है, न्यूक्लियर पावर का तो बिल्कुल नहीं था ब्रिक्स. अब 5 इंडस्ट्रियल नेशन, ये भी गलत था, ये भी नॉट अप्रोप्रिएट कह सकते हैं. ए ग्रुप ऑफ 5 मेजर इकोनॉमी इज द करेक्ट, बिकॉज लास्ट ऑप्शन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होना चाहिए. ये साउथ, ग्लोबल साउथ इसमें दिया हुआ था. अगर ग्लोबल साउथ की बात करें तो यह ब्रिक्स में एक कंट्री है रसिया, आर से. तो रसिया इज नॉट फ्रॉम साउथ. सो द ऑप्शन इज डी इज आल्सो इनकरेक्ट. सो द बेस्ट राइट आंसर फॉर इट ऑप्शन नंबर सी. Now let's come to steady population. It, most of you find it difficult because none of us read about the population and the growth rate and the statics part of the population and उनकी जनगणना वगैरह. तो बेसिकली हुआ क्या था, 19 और 21 में नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी, ठीक है, नेगेटिव. और 21 से 2051 से स्टीडी हुई थी. फिर जो ये पीरियड है ये बूम का पीरियड था. सो यहाँ पूछा था, ना बूम पूछा था ना नेगेटिव पूछा था, यहाँ पूछा था स्टीडी पॉपुलेशन. तो उसका आंसर था सी 21 से 51. सो
मणिकरण। इस क्वेश्चन को अप्रोच अगर आप नहीं जानते, इस क्वेश्चन को अप्रोच करना बहुत ही सिंपल था अगर आपका आंसर नहीं पता इसको। नहीं, उन्होंने बात की थी हिमाचल प्रदेश में। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो विंड एनर्जी फीजिबल है वहाँ, हर जगह पहाड़ है हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ किसी भी विंड को कहीं भी रोक के मोड़ सकती है, तो हर जगह हम विंड एनर्जी स्टेब्लिश नहीं कर सकते। बायो एनर्जी इज समथिंग फ्रॉम बायो फ्यूल वगैरह, फॉसिल फ्यूल से निकलती है जो भी, तो ये भी नहीं था। सोलर एनर्जी पहाड़ों में कहाँ है यार सोलर लगाएंगे, वैसे भी पेड़ है, कहाँ आने वाली है, पेड़ के ऊपर थोड़ी ना लगाएंगे सोलर पेड़, सो ये भी गलत हो जाता। तो सिंपल जियोथर्मल एनर्जी होती है, नीचे से ज़मीन से निकलती है, ज़मीन जब गर्म होता है ऐसा कुछ रहता है तो वहाँ से ये लोग एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो आंसर ये था 36 का, जियोथर्मल एनर्जी। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल डिफिसिट का आइडिया किसने दिया था? इसका आंसर है नीस। आपको सिंपल ये कि याद रखना था नीस, बिकॉज नीस थे, उन्होंने कहा था फिजिकल डेफिसिट होना एक अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तभी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो इकोनॉमी ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। सो द आइडिया फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग इज गिवन बाय नीस, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द आल्सो अ गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे पूछा था कि एनवायरमेंट कौन कौन से फंक्शन हमें देता है। इट इज आल्सो सम, नो वन रीड अबाउट एनवायरमेंट, सो इट इज आई थिंक अ न्यू टॉपिक दैट यूपीएससी आस्क्ड अबाउट। सो सप्लाइंग सोर्सेस, या इट इज सप्लाइंग हमें करता है, हमें एनवायरमेंट सप्लाई करता है, सस्टेन लाइफ, ये दोनों ऑप्शन मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट इट इज करेक्ट, बट व्हेन द third option, aesthetic service, most of you don't know about the aesthetic. If you read the हिंदी वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन का, अगर आप इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन देखते तो एस्थेटिक सर्विस का वहाँ लिखा था सौंदर्य, या अगर ये एनवायरमेंट हमें सौंदर्य सर्विस भी देता है, इसलिए तो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट क्यों आते हैं? सौंदर्य सर्विस लेने एनवायरमेंट की। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर सकते थे, और इसका आंसर सी करेक्ट है। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स टूल्स, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग एंड रॉ मटेरियल, मनी। आई हैव समवन सेज दैट फिक्स कैपिटल होगा ये, लेकिन वर्किंग कैपिटल भी नहीं था ये, ह्यूमन कैपिटल में तो इंसान आ जाते हैं, ओनली ह्यूमन, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल में भी यही इंसान वगैरह भी उन्हीं का सिनोनिम टाइप का है। फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट करेक्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस फिजिकल कैपिटल। Now let's come to the next question. So this is also a good question from science. So कैपिलरी का अगर आपको पता था कैपिलरी क्या वर्क करती है, कैपिलरी कनेक्ट करती है आर्टरी और वेन्स को। अगर आपको ये पता था तो यू कैन easily not find it difficult. कोरोनरी आर्टरीज, ये और इसका पता होता, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट को तेल नहीं देती, हार्ट को ब्लड देती है, ठीक है। हार्ट को तेल नहीं पहुंचाती, हार्ट को खून पहुंचाती है। सो ऐसे करके आप करते तो आंसर इसका ए आप सही करेक्ट लगा सकते थे, और आंसर इसका ए सही है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत लोगों को बहुत पहले देखने में ही बहुत डरावना लगता, भाई साहब क्या क्या लिखा है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट ट्रू पूछा है, और कितना पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको सिंपली फैक्ट पता होता कि हमारी अर्थ किस तरह हीट होती है, हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये रहा एटमॉस्फेयर, ये गर्म क्यों होता है? गर्म इसलिए नहीं होता है कि हमारी सूर्य की किरणों के डायरेक्ट किरणों से आती हैं, और अर्थ की सरफेस पे पहुंचने से पहले वो हवा में एटमॉस्फेयर में घुल के उसको हीट करती है, इसलिए नहीं होता। हमारा होता है जब हमारी अर्थ हीट इसलिए होती है, एटमॉस्फेयर गर्म इसलिए होता है जब हमारी जो सन की रेज आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, पहले तो आती हैं शॉर्ट वेव की फॉर्म में, जब रिफ्लेक्ट अर्थ से सरफेस पे जब टकरा के रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब शॉर्ट वेव आती हैं तो ट्रांसपेरेंट होता है, अब लॉन्ग वेव जाती हैं तो ओपेक सरफेस की तरह काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर, लेट मी रेज ऑल द थिंग्स। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड की जो आती है उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है, और फिर जब रिफ्लेक्ट होके जब लॉन्ग वेव के फॉर्म में वो दोबारा रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, स्पेस में, तो वो ट्रैप हो जाती हैं। इसी फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था साइंस का कि वेट हो जाएगा 9 टाइम्स। नाउ लेट्स कम टू, ये भी बहुत अच्छा बहुत इजी था। बी, इसका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए तो इसका आंसर बी था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी इजी क्वेश्चन था। साइंस के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आर इजी, डूएबल थे। इसका सी था, और इसका था B1। नॉट लिखा है ना भाई, नॉट देख लेते एक बार। नॉट को, नॉट वाले क्वेश्चन में करना क्या रहता है, सबसे पहले आप उसको सर्कल कीजिए, नॉट को पूछा क्या है, देन गो टू द ऑप्शन। कई बार होता है हम नॉट को इग्नोर कर लेते हैं और गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी, अगर ये कई बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था क्योंकि इतना डीप कोई पढ़ता नहीं है ग्रेजुएशन में आकर, कि हीलियम का मास, मॉलिक्यूलर मास था 4 और मोल पूछा था, है ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो इफ यू सिंपली डिवाइड 104 बाय 4 से, तो आपको सिंपल 26 मिल जाता, ये होता है उसका मोल। नाउ मोस्ट ऑफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट। ये 11 वाला क्वेश्चन भी कई लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगा। ये क्या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। सो सिंपली इफ़ यू नो दैट वाइल बर्निंग हाइड्रो, इफ़ यू सी येलो फ्लेम आती है, तो वो क्यों आती है, वेट के कारण। मोस्ट ऑफ द पीपल को, बच्चों को कहाँ दिक्कत आई थी, वेट करें, गीला गीला होता है तब भी काला धुआं देता है, और अनसेचुरेटेड में कंफ्यूजन हुआ था। तो सिंपली इफ़ यू थिंक दैट गीले होने के कारण उसमें धुआं आता है, ऐसा नहीं है। पेट्रोल गीली होती है, पानी डालोगे ना तब भी धुआं वो अच्छा फ्लेम ही देगा, स्मोक नहीं देगा। सो इस हिसाब से अगर अप्रोच करते, ये लॉजिक लगाते कि अगर हम पेट्रोल डाल दें और साइड में पानी डाल दें और आग लगा दें, पेट्रोल तो गीली हो गई और आग लगा दें, क्या काला धुआं देगी, नहीं देगी। इसलिए द ऑप्शन गो ओनली, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होता बी। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था, सिंपल था, थोड़ा सा डीप नॉलेज चाह रहा था। जैसे कि अपन पढ़ते हैं सीधे सिंपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसका फॉर्मूला बस पढ़ लेते हैं, बस इसमें ये होने वाला है, और सिंपली इतना तक पढ़ के जाते हैं, इससे डीप नहीं पढ़ता। लेकिन थोड़ा सा डीप पूछा हुआ था, तो आंसर इसका था 18 and 0। C1 इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल था। मोस्ट ऑफ यू नो दैट नॉन मेटल जब भी डिजोल्व होगा तो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डीप पूछा हुआ था कि सपोज एक्सीडेंट होता है, माउथ और ओइसोफेगस की लेनिंग्स आपकी इंजर्ड होती है, तो कौन सी एपिथेलियम, एपिथेलियम होता है ये आउटर मोस्ट लेयर, स्किन की, स्किन और स्किन के नीचे वाली लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट से, बाहरी इन्वायरमेंट से। तो एक्वस एपिथेलियम होते अपने माउथ और ओइसोफेगस में होता है। इसका काम क्या रहता है, ये सीक्रेट करती है, मतलब सीक्रेट करती है, जैसे सलाइवा वगैरह, ये कुछ भी निकालना है वो होता है एक्वस एपिथेलियम की ही बदौलत। तो इसका आंसर था सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज अ परमीबल, सेमी परमीबल, सिलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव, here the word is selective permeable, which means he only allow selected items or material from the environment into the cell organelle or inside the environment of the cell. So answer for it, option number C. Now let's come to, this is also very easy question. So the right answer for this, photosynthesis only. Now let's come rickets। rickets भी आपने देखा होगा, एक बच्चा पतला सा, उसके हड्डी दिख रही है, सब कुछ दिख रही है, पेट की हड्डी दिख रही है, लंग्स वाली स्केलेटन दिख रहा है पूरा। सो दिस इज रिकेट्स, सो विटामिन डी की कमी से होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली साइंस एंड टेक का हो जाता है, और इसमें नॉट लगा के उनने जो डिफिकल्टी कई बच्चों को एलिमिनेट करने का काम किया है, नॉट लगा दिया, कई बच्चों ने देखा ही नहीं नॉट। और इस क्वेश्चन को अगर सिंपल होता तो नोट ना होता, थोड़ा सा डिफिकल्ट किया, नोट लगा दिया, ऊपर से जेनेटिक पूछा, तो आंसर जीन का ये ऑप्शन सही था, ये भी ऑप्शन था। तो ये एप्लीकेशन
नॉट ओनली प्लांट के लिए, एनिमल्स में भी यूज होता है। तो हम ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर हिंदी में डाला है, क्योंकि अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखते तो आपको लिटिल बिट डिफिकल्टी होती है इसको सॉल्व करने में। क्योंकि समाजवाद फेडरलिज्म पूछा था कि इंडियन फेडरलिज्म कौन सा फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म। ऑप्शन दिया हुआ था कि नेहरूवियन फेडरलिज्म, कम्युनिटेरियन फेडरलिज्म और दिस लोकतांत्रिक व्हाट वी से डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म। लोकतांत्रिक मीन्स डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म। अगर आप इंग्लिश ऑप्शन से जाते, इसके इंग्लिश वर्जन से, तो आपको डिफिकल्टी बहुत होती, लेकिन अगर आप हिंदी देखते, उग्र समाजवाद, उग्रवादी अपने अलाउड नहीं है, इसलिए तो इतने सारे कानून है। सिंपल, उग्रवादी कौन अलाउड करता है? उनके साथ कितने कितने प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हुए हैं उग्रवादियों के लिए, कितने सारे पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं उनके लिए। उग्रवादिक समाजवाद नहीं है पाने हमारे यहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका, मैं फिर से कहूँगा, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन जाते तो आपको ये डिफ़िकल्टी फेस होती, लेकिन आप हिंदी में जाते तो आपको बहुत ही सिंपल हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कई बार क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में भी देखो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल उन्होंने पूछा था सब्सिडरी लाइंस के। मोस्ट ऑफ यू आई थिंक मार्क इट राइट, ऑप्शन नंबर बी, कि एलआई को हम दूसरे एंगेज नहीं होने देंगे वाफिया में। नाउ लेट्स कम टू विच ऑफ द एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कई लोगों ने एग्जॉस्टिबल सुनकर देखा, अरे सूर्य तो हमारा मर जाएगा किसी दिन, एग्जॉस्ट हो जाएगा, हीलियम उसकी सब खत्म होने वाली है, तो सोलर एनर्जी एग्जॉस्टिबल। बट बिफोर दैट वाटर इज यूजेबल कंडीशन में ही खत्म हो जाएगा भाई। सोलर एनर्जी तो बहुत बिलियनियर्स बिलियनियर्स आफ्टर बिलियनियर्स बहुत बहुत सालों बाद खत्म होगा, उससे पहले तो पानी ही खत्म हो जाएगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर इट, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्ट्री से आया था, हेडक्वार्टर पूछा था गदर पार्टी का। इट इज सिंपल वन, मोस्ट ऑफ यू नो दैट, सैन फ्रांसिस्को। एंड टू पिलर, ये करंट अफेयर से थोड़ा टफ करंट, इस बार करंट अफेयर जो पूछी हुई है थोड़ा टफ पूछी हुई है, सिंपल फॉर्म में नहीं पूछी, थोड़ा डीप का है, थोड़ा यूपीएससी लेवल का कह सकते हैं, सीएससी लेवल का कुछ डाला था। तो इसका आंसर था मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ये WTO के संबंधित ये वो लिया था। WTO, इफ़ यू नो दैट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस लोग करते हैं, उसके खिलाफ ये थोड़ा सा इनका अच्छा थोड़ा सा प्रोविज़न कह सकते हैं, न्यू अपडेट वर्जन फॉर दोज हु टैक्स इवेजन कर रहे थे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेंडमेंट की, सो मोस्ट ऑफ यू थिंक इट इज़ करेक्ट, बट हेयर आल्सो इज देयर नॉट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे हैं ये लोगों को, कई बच्चों ने गलत करके आए हैं सब कुछ जानते हुए भी। क्यों? नॉट की वजह से। दे आर नॉट, सर्कल इट नॉट और मार्क इट। सबसे पहले नॉट को मार्क करो या सर्कल करो, फिर आंसर ऑप्शन की तरफ जाओ। दिस इज द राइट अप्रोच, बिकॉज आफ्टर रीडिंग द बिट वी आर रीडिंग द ऑप्शन, वी फॉरगेट द नॉट एंड मार्क, जल्दी जल्दी में मार्क कराते। सो द आंसर फॉर इट ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले आपको तो बताऊँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये होता है, नॉर्मली जो ज़्यादा नंबर लाएगा वो जीत जाएगा, जो ज़्यादा नंबर वोट लाएगा वो जीत जाएगा, वो होता है फर्स्ट पास्ट। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है MP के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, MLA के लिए ये वाला सिस्टम चलता है। बट फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम टू द महाजन वज्जी। ये थोड़ा महाजनपद से पूछा था। वज्जी एक ऐसी थी जहां ओलिगार्ची चलती है। ओलिगार्ची मतलब डेमोक्रेसी टाइप की, कि पीपल के जो राजा का लड़का राजा होगा वो नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा, बल्कि हम चुनेंगे अपने लोगों में से, वही राजा बनेगा। तो ओलिगार्ची वज्जी में चल रही थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट बिलोंग टू नो चेंजर। कई लोगों ने इसमें कंफ्यूज किया हुए एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर। नो चेंजर दे थिंक्स आर नो चेंजर आर द मॉडरेट्स एंड चेंजर आर द एक्सट्रीमिस्ट, बट दिस इज नॉट द केस। नो चेंजर का कॉन्सेप्ट कब आया था? जब 1924 में इलेक्शन होने थे, अपने गांधी जी नॉन सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जेल चले गए थे 1922 के जलियांवाला, नॉट जलियांवाला, छोरा छोरी मूवमेंट के आफ्टर उन्हें जेल हो गया था। तो फिर इलेक्शन होने थे, इलेक्शन में अब
एक पार्टी कह रही थी हम इलेक्शन नहीं करेंगे, एक पार्टी कह रही थी हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोज हु आर फॉर दोज हु आर अगेंस्ट द इलेक्शन participant, those are called no changer, or those are asking for the we are going to participate in election and we are अच्छे अच्छे काम करेंगे इलेक्शन एमएलए बनने के बाद, एमपी बनने के बाद, तो वो थे चेंजर। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी, विथल वाइज अमंग द नो चेंजर। नाउ लेट्स कम टू ये भी बहुत सिंपल था। मॉर्ले मेंटोर रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी 1909 में। मॉर्ले मेंटोर फर्स्ट, पहले तो कांग्रेस ने इसलिए अपोज किया था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करेंगे, लेकिन जब 1916 का लखनऊ सेशन हुआ था तो उसमें बात तो इन्होंने मान ली थी, हम सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज नहीं करेंगे, हम साथ में इलेक्टोरेट भी रहने देंगे और आप हमारे साथ भी मिलकर काम करोगे। सो दिस इज हाउ द 19 लखनऊ सेशन conducted, and these are the some point in Lucknow session. So here the answer is option number A. Now let's come to the next question. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस मैं कह सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर डिस्प्लेड इन द पॉपुलेशन पिरामिड। अगर आप ये आउट ऑफ सिलेबस है, किसी को मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट दिस, लेट मी टेल यू अबाउट दिस। पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है, ये पिरामिड बना देते हैं ऐसा, एक साइड मेल को ले लेते हैं, एक साइड फीमेल को ले लेते हैं, और इस एज ग्रुप, यहाँ एज ग्रुप कर देते हैं 65 से कोई भी अगर 65 से 70 के बीच के लोग कम है तो ऊपर आ जाएंगे, 50 से 40 के मेल हैं तो इस साइड, फीमेल हैं तो इस साइड, ऐसे ऐसे करके ये पिरामिड बनता है। तो ऑप्शन नंबर ये सी इसका करेक्ट होता। नाउ मोस्ट ऑफ यू थुलियर पीक पूछी थी, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू मार्क इट करेक्ट, सो आई एम नॉट। ये मिडिल, शायद ये मिडिल अंडमान में था, हाँ मिडिल अंडमान में था। राइट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मोस्ट स्मोक का फॉर्मेशन के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? स्मोक क्यों होता है? फॉग, लेट मी राइट, फॉग प्लस स्मोक, ठीक है ना। अब स्मोक तो कभी भी उड़ सकता है, ठीक है ना, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में। बस फॉग कब होता है? सर्दियों में। सर्दियों में फॉग क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में इन्वर्जन लिड फॉर्म हो जाता है। लेट मी इरेज इट। इन्वर्जन लिड क्या होता है? लेट मी टेल। इन्वर्जन लिड होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, नॉर्मल, ये क्या होता है, नॉर्मल फिनोमेना होता है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के आप ऊपर जाएंगे 35 से 40, 40 से 60, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज ना होने की जगह वह इंक्रीज हो जाता है सडनली। सो जब ये फिनोमेना होता है तो एयर क्या है, ऊपर से लौटने लगती है, तो ये होता है इन्वर्जन लिड, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन लिड। सो द राइट ऑप्शन इज बी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी रीड विच ऑफ नॉट। इतने सारे क्वेश्चन भाई लोग नॉट के पूछे हैं और कई बच्चों ने गलत भी किए हैं। नॉट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल कह सकते हैं, काफ़ी हद तक ज़्यादा थी इस क्वेश्चन पेपर में। तो क्या होता है, रेजिग्नेशन जो लोकसभा का स्पीकर रहता है वो प्रेसिडेंट को ना देके डिप्टी स्पीकर को देता है। सो द ऑप्शन इज बी इज इनकरेक्ट। ये सही था कि अगर लोकसभा के स्पीकर को हम रिमूव करना चाहते तो उसी के लोकसभा के स्पीकर की ऑफिस में जो बैठा है वो उसको रिमूव करना है, ना कि लोकसभा में एमपी जो बैठा है उसको रिमूव करना है। ऑफिस जो उसने हेल्ड की हुई है उससे उसे हटाना है, ना कि मेंबरशिप से हटाना है। सो मेंबरशिप से हटाने के लिए अलग प्रोसीजर है, ऑफिस से हटाने के लिए ऑल द देन मेंबर, और विच इज नोन एज इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब ऑल द देन मेंबर। ये ऑप्शन भी सही था, तो इनकरेक्ट ओनली बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट था। तो आपके फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई अल्बीडो। अल्बीडो मतलब क्या होता है? अल्बीडो मतलब एक ऐसा फिनोमेना जहाँ रेज आ रही है, सन रेज आ रही है, टकरा के किसी सरफेस पे डायरेक्ट ऊपर जाए बिना एब्जॉर्प्शन के, और लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट रेज, और हीटिंग, उसकी हीटिंग कम एब्जॉर्ब करके विदाउट एब्जॉर्बिंग दैट हीट
द रेज हैव विदाउट ऑब्जर्विंग द हीट द रेजर इट रिफ्लेक्ट बैक। सो द सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है स्नो में। इसलिए तो हम जब भी ले साइड जाते हैं, जब भी घूमने जाते हैं पहाड़ी जहाँ स्नो है, वहाँ चश्मे लगा के घूमते हैं, क्योंकि एल्बिडो इतना ज़्यादा होता है, आप इतना रिफ्लेक्शन होता है, आप देख ही नहीं सकते कुछ बिना सन ग्लासेस के। सो इसका ऑप्शन सही था, जो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेबियस ऑप्शन वाला ये भी बहुत इजी था, मोस्ट ऑफ यू अटेम्प्टेड राइट। नाउ क्वार्टरलेस सप्तसंग थ्योरी, मोस्ट ऑफ यू थिंक्स इट। क्वार्टल के बारे में हमने तो पढ़ा ही नहीं है, कभी नहीं पढ़ा, और साथ ही साथ इन में फिर से नोट डाल दिया है क्वेश्चन में, फिर से एक बाउंसर डाला है उन्होंने, बाउंसर पे बाउंसर दे रहे हैं नोट डाल के। तो क्वार्टल शतपथ थ्योरी में उन्होंने अमात की बात की थी, जनपद की बात की थी, दुर्ग मीन्स फोर्ट की, लेकिन धम्म की बात अशोक ने की थी, ना कि कौटिल्य ने। तो धम्म इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मोस्ट ऑफ यू थिंक ये कहाँ से आ गया भाई, ये कभी पूछते ही नहीं है कि कौन से केस में। सीडीएस वाले तो यूपीएससी लेवल का पर दे रहे हैं क्वेश्चन की कौन से जजमेंट में उसने क्या कहा। तो नाज फाउंडेशन इज देयर फॉर द 377 में क्या था, होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया है, क्योंकि अपने यहाँ पहले लड़का अगर कुछ भी करे लीगल था, उसको पेनल्टी दी जा सकती थी, लेकिन अब कोई पेनल्टी नहीं है। और लेट मी टेल यू अबाउट श्रेया सिंगल केस में। श्रेया सिंगल समथिंग रिजर्वेशन की शायद बात हुई थी, विशाखा गाइडलाइन में हुई थी, वुमेन के वर्क प्लेस में उनका हरेसमेंट हो रहा था, वो में एक विशाखा लड़की थी उसका। तो उस जजमेंट में उन्होंने बताया था कि वर्क प्लेस में वुमेन के लिए क्या सेफ्टी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। श्रेया बानो केस में ट्रिपल तलाक के रिलेटेड था कि ट्रिपल तलाक में हमारे पति को जेल हो जाएगी, तो हमें पैसे कौन देगा। मतलब क्या था श्रेया बानो केस में कि उन्होंने कहा था कि अगर आपका 3 तलाक करता है, ट्रिपल और तलाक है ऐसा करके आपका पति आपको छोड़ता है, तो उसको जेल हो जाएगी। तो इतना तो ठीक है, जेल हो जाएगी, लेकिन आगे प्रोविजन ये था कि उसको जो वाइफ है उसको पैसे कौन देगा, उसकी सस्टेन करने की हाउस होल्ड जो भी अपन देते हैं अपनी वाइफ को। तो अगर वो जेल चला जाएगा तो उसको पैसे कौन देगा, ये तो कुछ अजीब ही चल रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी रेज ऑल द थिंग्स। 19th सेंचुरी के जो पीजेंट, ये डेक्कन रियोट की बात हो रही है। इफ़ यू नो डेक्कन रियोट में क्या हुआ था, पीजेंट रिवोल्ट हुआ था। उस उन्होंने पूना के अराउंड बॉम्बे में उनके शॉपकीपर के और बही खाता उन्होंने जला दिए थे, तोड़ दिए थे, और उनके रिकॉर्ड सारे मिटा दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ यू फील दिस क्वेश्चन इज फिर से बाउंसर डाली, नोट डाल के, साथ ही साथ एल नीनो का इफेक्ट भी डाला। ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है क्वेश्चन इससे, तो बट द राइट ऑप्शन आई ओनली राइट ऑप्शन इज बी। ओके, flow of southeast trade winds toward the ocean is not a resultant of El Nino effect. It is a result of differential heating of Tibetan plateau. It is the result of differentiated heat of Tibetan plateau. Okay. Now let's come to the next question. So फिर से उन्होंने एक बाउंसर डाला, कौन सा बाउंसर डाला, लेट मी व्हाट हैपन इज देयर, लेट मी राइट। उन्होंने फिर से नोट डाल के एक बाउंसर फिर से डाला, उन्होंने पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अंडरटेकन, ये तो सही था भाई लोग, जितने भी काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। और अटॉर्नी जनरल, पहले क्या हुआ करता था कि अटॉर्नी जनरल के ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछते थे सिंपल फॉर्म में, लेकिन इसमें स्टेटमेंट वाले दिया था इस बार कि उसको डिफिकल्ट, इस साल का जो जीएस का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट बना रहा था, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत भी दिए थे। जैसे इसमें प्रेसिडेंट भी डाल दिया, अटॉर्नी जनरल भी डाल दिया, फिर काउंसिल भी डाल दिया, फिर से प्रेसिडेंट डाल दिया। तो द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन इन दिस एग्जाम इन इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज़ द लेवल ऑफ यूपीएससी सीएसई एग्जाम। आप आईएएस का देने जाती है तब ऐसे फ्रेम क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं, ना कि ये सीडीएस है भाई। आप क्या कर रहे हो, जो बच्चा कल तक
कॉलेज में मस्ती कर रहा था, आज वो पेपर देने आ रहा है और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करे, क्यों करेगा? नहीं करेगा, डिफिकल्ट तो फील होगा ही. सो द बट apart from this, let's come to the topic. Is the option number C is the correct for this question. क्योंकि टोटल मिनिस्टर काउंसिल में 15% से कम होना चाहिए, ना कि 10% से. 10% में दिल्ली में होता है. कहाँ होता है? दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लेकिन अदर जहाँ भी MP UP की बात कर रहे हैं, हरियाणा की, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ 15% का प्रोविजन है. 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होनी चाहिए. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 डिग्री इट इज थोड़ा सा उन्हें ट्रिकी बनाया ये क्वेश्चन को. इजी है लेकिन ट्रिकी बना दिया, कई लोगों ने गलत अटेम्प्ट कर दिया. लिटिल अल्मोड़ा और कार्निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल. ये बरकाना, दूध सागर, ये भी इट इज आई थिंक most of you not able to attempt it right. 73 का. So now let's come to the next question. Constitution of India which of the following is not correct. फिर से उन्होंने बाउंसर डाला, नॉट डाल के, और फिर से बहुत सारे ऑप्शन डाले. इट मेक्स द क्वेश्चन डिफिकल्ट. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनिवर्सल बेस्ड, ये भी सही था. द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ये इसमें बोला था कि सारे मेंबर पार्लियामेंट के उसको इलेक्ट करने के लिए उस इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ऑल मेंबर नहीं आते, इलेक्टेड मेंबर आते हैं. नॉमिनेटेड मेंबर बाहर रहते हैं, उनके इलेक्शन में वो वोटिंग नहीं करते. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्टिकल 78 इज द राइट आंसर. क्योंकि कभी अगर मन करे प्रेसिडेंट का कि हाँ तुम्हारे बीच में काउंसिल और तुम्हारे PM के बीच में क्या चर्चाएं हो रही है, क्या बात हो रही है, किस टॉपिक के ऊपर तुम लोग कुछ बड़ा करने जा रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है प्रेसिडेंट कभी भी. और किस आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल नंबर 78 में लिखा है. So now let's come to we have to conclude it here only. So thank you for watching the video. Please subscribe, like, share if the session is good and support us. Subscribe जरूर करें, like करें, और thank you for the next video. I am making the video on a cut off, so please watch my next video. मैं कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं और कुछ अच्छी मतलब अच्छा वीडियो होगा, थोड़ा रिसर्च बेस पे, और अच्छा कट ऑफ होगा. थैंक यू फॉर